अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्ने पत्ते ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कईयाव दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज दोमन तबकन सत वाबस्त लूख हन हन शामिल सपदन यह जन कईयाव अदीबो कलमकारों खिलाड़ियों तो दोमो लूकों तरफ हासिल करना आमत अवार्ड बतौर एहतजाज वापस करना आई यथ दौरान मरकजी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने पास करने आमत कानून गि वापस नुन युन यह जन जमींदारों तरफ गोड़े इशार दिन आव योताम सरकार कानून वापस नी तोताम रोज एहतजाज जारी यपर पगह जमींदार तंजीमों तरफ भारत बंद काल दिन आमत तत कईयाव सियासी समाजी तो ताजर तंजीमों अलाव दिल्ली सरकार तरफ अमि काल हिमायत करने ऐलान करना आमुत यथ दौरान आज दिल्ली हिंद वजीर आला तो नायब वजीर आला एहतजाजी जमींदारन सत मुलाकात कर वोन दिल्ली सरकार जमींदारन प्रेथ रंग हिमायत करने बापत तैयार। अरे क्या कर रही है? भाई क्या कर रहे हो? सर जैसो जो मोदी सरकार ने काले 3 कानून बनाए आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ एक हमला करेंगे। भाई साहब हम तो सीधी सी बात करना है मोदी से हाँ या ना हम जवाब दे दे तो बिल रद्द करने है कि नहीं करने, कितनी मीटिंग करेगा भाई सीधी बात बता दे। हम तो काले कानून रद्द करवाने के लिए बॉर्डर पे बैठे हैं और 26 तारीख को यहाँ आए थे। ठंडी रातों में हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रात को सोते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश की आत्मा है, आप उस आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। 8 तारीख को हम भारत बंद करें, 9 को हमारी फिर आपसे मीटिंग है, फाइनल मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम आपसे मीटिंग भी नहीं करने वाले और 10 तारीख को हम किसान इस देश का अन्नदाता फैसला करेगा। पूरे देश के किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आइए आप सब मिलके इस अन्नदाता की आवाज को उठाने का काम करें। I'm Dr. Harkamal Sekhon. I belong to Ludhiana, but I'm presently working in Amritsar. I'm an MD dermatologist. I am here for the protest because it doesn't matter what your profession is right now. We all belong to farmers' family. We have backgrounds in farming. We are made by farmers. We are the production of farmers, you can say. So I'm here to just for the protest so that I can put forward my word with my people of my state, whatever bit I can do. We've come in the morning. We started at 5 o'clock from Ludhiana. We've just arrived here and now we are standing here in middle of the main the speech area. We are mute protesters. We are just armed, non-armed and mute protesters. We can just put forward our words with banners. There's no point of shouting or there's no point of fighting in putting your word forward in present scenario. जम्मू कश्मीर मज ये आज DDC इंतखाबन हंदिस 4मिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न आई तत लूको तरफ बढ़ित तो बूलित वोटिंग अमल मज हिस्स निन आमुत।
وادی کشیر مز یہ ژوٗرمِس مرحلس تحت آز نارواو بونیار کولگام اے کولگام بی ویری ناگ شاہ آباد پلووم اکھ اونت پور زٕ درگمولا ماور سرسیار ناربل آلوسا کاپرن لار اے تو لار بی بلاکن مز ووٹنگ عملہِ مز انہ آئی تتہ سرد موسم آسن باوجود لوکو طرف آز تہ ووٹنگ عملہِ مز بڑھت تو بولت حصہ نت پنس امیدوار سندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرنا آمت ووٹنگ یہ آز صبح 7 بج شروع سپز تتہ وٲژ دُچہِ 2 بج ووٹنگ اند یپٲرۍ ووٹنگ عملہِ مز حصہ نِنہٕ والیو ووٹرو تو امیدوارو طرف وننہٕ آمت زِ علاقائی تعمیر ترقی یقینی بناونہٕ باپت تمو انتخاب عملہِ مز حصہ نِمُت یُتھ زن زمینی سطرس پہ تہندِ علاقٕچ تعمیر ترقی یقینی بناونہٕ یی ہپٲرۍ ییٚتہِ انتظامیہ طرف پولنگ مرکزن پہ معقول انتظام کرنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تتہِ ٲسۍ سکیورٹی ہٕنٛدۍ تہِ سخت بندوبست کرنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن نہٕ کانٛہہ ناس تراس واقعہٕ پیش یی ژوٗرمِس مرحلس تحت سپدن واجیٚنۍ ووٹنگ عمل ییٚتہِ پُرامن پٲٹھۍ اند وٲژ تاہم چھُ پلووم تہٕ اوٗدھ پورہ بلاک کٮ۪ن کیٚنٛہن پولنگ مرکزن پہ ووٹر کم کاژِ نظرِ گٔمٕتۍ ییٚلہِ زن ضلعس منٛز انٹرنیٹ سٔروس تہِ معطل کرنہٕ چھِ آمٕژ یہ کتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ گۄڈٕنِکِس دوٚیمِس تہٕ ترٛیٚیمِس مرحلس منٛز ییٚتہِ زنٮ۪ن تہٕ نوجوانن ہٕنٛدۍ بٔڑۍ تعدادن ووٹنگ عملہِ منٛز حصہٕ نِتھ پننہِ ووٹُک استعمال کوٚر تتہِ چھُ ژوٗرمِس مرحلس منٛز تہِ زنٮ۪ن تہٕ نوجوانن ہٕنٛدۍ أکۍ خاص تعدادن حصہٕ نِتھ پننہِ ووٹُک استعمال کوٚرمُت یپٲرۍ ییٚتہِ انتظامیہ طرف انتخاب صاف شفاف طریقس منٛز عملہِ منٛز اننس حوالہٕ دعوٕ کرنہٕ چھِ یِوان تتہِ چھُ آز شمٲلی کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز تمہِ ساتہٕ ووٹرن مایوٗسی سپٕزمٕژ ییٚلہِ نہٕ تِہنٛدۍ ناو ووٹر لسٹس منٛز تِمن لبنہٕ آیہِ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ خاص زون دِنہٕ یُن یُتھ زن پرٛٮ۪تھ أکِس پننہِ ووٹُک استعمال کرنُک موقعہٕ فراہم سپدِ پہلی بار ووٹ ڈالا ہے زندگی میں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہاں یہاں پہ جو کنسٹرکشن نہیں ہے یوتھ میں ان امپلائمنٹس ہے اسی لیے میں نے ووٹ ڈالا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کنسٹرکشن ہو جائے ہمارے پاس واٹر کی پرابلم ہے ہمارے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ روڈس کی کنسٹرکشن نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرک پولز نہیں ہے بجلی کا بہت سے پرابلم ہے اس لیے ایم ایل اے گھر گھر نہیں پہنچ سکتے وہ گاؤں ہر کسی گاؤں میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہم نے ڈی ڈی سی کا ووٹ ڈالا ہے یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ویاسی کچھ نہیں ہے البتہ یہ جو ہے ووٹ یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون سا اچھا ہے آگے چلنے والا کون ہے اس کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے باقی یہ کچھ نہیں ہے یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ ہے کہ پہلی بار جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی کے الیکشن ہو رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دن بدن ہم لوگ گورنمنٹ سے مل رہے ہیں تو آج سے پہلے نہیں ہو رہے تھے آج پہلی بار ہو رہے ہیں الیکشن تو اس سے بہت سی تعمیر ترقی کے لیے گورنمنٹ جاب کی کمی ہے یہاں پر لوگ بیکار ہیں بہت پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے آئے ہیں ڈی ڈی سی کے جو الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم اس لیے ووٹ ڈالنے آئے تھے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو جابس کے لیے کوششیں ہو تاکہ ہمیں آگے آنے کا موقع ہے ابھی یہ عام انسان کے لیے یہ ووٹ بہت زیادہ قیمتی ہے بیکاز یہ فرسٹ چانس ہے مما کا اوبیسلی سب کو پتہ چلنا چاہے کہ کیسی کام کریں گی آگے جب ان کو فرسٹ چانس ملے گا تب جا کے لوگ ان کو آگے آزما سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ابھی مما کو زیادہ ووٹس آئے اور وہ اچھی پوری پاور کے ساتھ جیتے بیکاز جب تک ووٹس نہیں آئیں گے لوگ ان کو پکھار نہیں سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسی یہاں پر کام ہوتا ہے تو اوبیسلی ان کو ووٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو بھی ابھی ووٹ دیں گے وہ ان کا بہت ہی زیادہ قیمتی ووٹ ہوگا محمد ڈار مٲلِس ناو جبار ڈار مےٚ گٔے تقریٖباً وٕنکٮ۪نَس 30 ؤری ووٹ ترٛاوان مگر آز نیٚبرٕ چھِ نیران ووٹ أنٛدرٕ چھِ نیران اَسہِ کہِ یہِ پیپرٕ چھِ کوٚرمُت غٲب أسۍ چھِ صُبحٲے 7 بجہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آمٕتۍ یور 7 بجہِ پٮ۪ٹھ وٕنِچ نہٕ دِوان چھِنہٕ اَسہِ ووٹ ترٛاونہٕ کِہیٖنۍ دَپان أسۍ اژان اَنٛدر دَپان یہِ تُہُنٛد نسُن ییٚتہِ کہِ یہِ حظ کوٚرمُت فرٛاڈ مہ اَسہِ یہِ حظ لَگہِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس پَتہ ترٛیٚیہِ پھِرِ أسۍ ژاے ترٛیٚیہِ پھِرِ دوٚپُکھ ییٚتہِ چھُنہٕ کہِ وٕنکٮ۪نَس گٔے کٔلیر تِمو دوٚپُکھ أنٛدرٕ نسُن یہِ پیپر اَسہِ کہِ یہِ پیپر حظ چھُ کوٚرمُت مہ غٲب اَسہِ اِسلیے مہربٲنی أسۍ چھِ وَنان کیٛاہ چھُ ناو الیکشن کمشنر صٲبس اور أسۍ چھِ وَنان گورنر صٲبس تہِ یہِ چھُ غلط گژھان اَسہِ سانہِ خٲطرٕ گژھان یہِ ظُلم یہِ گوٚو باد ریشمہِ یہِ ہسا چھُ یہِ گوٚو مُصیبت سانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ وَنان کمشنر صٲبس تہِ اور ڈی سی صٲبس کہِ اَمیُک کَرن تحقیٖقات جوٚمۍ صوبس منٛز تہِ ییٚتہِ آز صبح پٮ۪ٹھے ووٹرن منٛز سٮ۪ٹھٕے جوش وٕچھنہٕ آو تہٕ صبحن 7 بجہِ پٮ۪ٹھ پولنگ مرکزن پٮ۪ٹھ ووٹرن ہٕنٛز بجہِ بجہِ لٲنہٕ
नजर आज गसन तत इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन अंद पक सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करना आमत ये चूरमिस मरहलस तहत आज इंदरवाल मगल मैदान मारमत अखराल ए अखराल बी जिज बिगली गोरदी नारसू डिंगा गगवाल रामगर ए दनसाल नगरोटा बुदल ओल्ड बी मंजाकोट नंगली साहब सैन बाबा तो 17 बुलाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तन पोलिंग मरकजन पे लूकन हंद बड़ तादादन हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत ये जन अल पल जोम सोबस मज ते वोटिंग हुंद चूरिम मरहल पुर अमन पट अंद वोत। आप तो हम हर बार ही एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बार एक न्यू एक्सपेक्टेशन है कि ये अगर हम कुछ न्यू डेवलपमेंट के लिए होप कर सकते हैं तो वो शायद इस साल हो सकता है। तो इस साल इसी उम्मीद से मैंने वोटिंग की है यहाँ पे। तो आई होप कि कुछ नया हमारे फीमेल्स के लिए भी कुछ निकल के आए। वैसे कि ये इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नया निकल के आएगा हमारी फीमेल्स के फेवर में। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और हम ये चाहते हैं कि हम सब मिल के वोट दें और जो घर पे हैं वो भी आके दें, इसलिए कि डीडीसी इलेक्शन जो भी जीते वो हमें वो सब कुछ दे जो हमें आज दिन तक नहीं मिला है। और हमारे इलाके में एक ही स्कूल दिया हुआ गवर्नमेंट स्कूल है और हमें और भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए यहाँ पे जाके हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हमें बहुत सारी उम्मीद है। J&K हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे महकमा आंगनवाड़ी मज पन फरज सान अंजाम दिवान तो कई फिर इंतजामिया तरफ तिहद मसल तो तनख्वाह वागुजार करनुक यकीन दिन आव, ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन तुम सड़कन पर गिनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसल अंजराव तो तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आमत। ICDS मज काम करान, हेल्पर टू सुपरवाइजर मसल गई 2 वरी तनख्वाह बंद। बार बार प्रोटेस्ट कर मे बासान वन थकिस प्रेस गाली मज प्रोटेस्ट कर 2 वरियन कर थकिस सह कह आवाज बोजान सन आप गर हे वन यम वरी हे हम वरी हे तुम हू तुम यह ऑफिस मज करान सुपरवाइजरन ऑफिस में चाय बनान कागजी काम कर इलेक्शन ड्यूटी जमात जमात ब्या जमात थान पत कुन सोन चार करो मज गरीबी होत बेसारे होत कहें ये किराए बेस योतन श्रीनगर ICDS मज काम करान हेल्पर टू सुपरवाइजर मसल गई 2 वरी तनख्वाह बंद। बार बार प्रोटेस्ट कर मे बासान वन थकिस प्रेस गाली मज प्रोटेस्ट कर 2 वरियन कर थकिस सह कह आवाज। हाल जम्मू एंड कश्मीर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स यूनियन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल डीलर महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल डीलरों तरफ वन आमुत योदवे महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ हुक्मनाम जारी करना आमुत यम किन डीलर एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल डीलरों तरफ मांग करना आमुत जो हुक्मनामस पे गई दोबारा गौर करने युन युद्धन डीलरन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने। बदकिस्मती से हम पहले राशन लेते हैं, बैग में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमारे महकमे के सरबराह ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने ये लिखा कि पहले आप कैश जमा करो फिर राशन ले लो। हम उसको पूरा कंटेम्प्ट करते हैं उस ऑर्डर को। अपने महकमे के
कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सिमरनदीप साहब से गुजारिश करते हैं वो ज़ाती तौर पर इसमें मुदाखलत करे, और एडवाइजर फारूक साहब से भी गुजारिश करते हैं वो इसमें मुदाखलत करे। अगर ये आर्डर हमारे महकमे के सरबराह वापस नहीं लेंगे, क्या पता है ये हड़ताल कब तक झेलेंगे। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज सरहद अपार रोजन वाजन जनो तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल जन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल जनो तरफ वन आमुत ये बादकारी प्रोग्राम तहत तिम पन्न शरीक हयातन सरहद यपोर अन्न आये, ताहम इंतजामिया तरफ तिहज शहरियत कबूल करने यमकिन तिम मुश्किल मज हन आई। एहतजाज में शामिल जनो तरफ मांग करना आमज तिमन हवाले गि वाजह पॉलिसी ब्रोह कुन अन्न yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। गवर्नमेंट हमें एक तरफ कहती है कि आप यहाँ के नेशनल नहीं हो, आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, आप यहाँ इलीगली हो, और दूसरी तरफ हमारी ही लड़कियों को डीडीसी इलेक्शन में सरपंच पंच सबके इलेक्शनों में खड़ा किया, और मतलब वो जीती हैं। वो मतलब आज उनका सोमिया सरफ जो हमारे वहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो खड़ी हुई है डीडीसी इलेक्शन में, तो वो किस बेस पे खड़ी हुई है। हम गवर्नमेंट को यही पूछ रहे हैं कि ये दोगली पॉलिसी क्यों खेली जा रही है हमारे साथ। अगर उनको नेशनलिटी है तो हमें क्यों नहीं है। वो भी हमारी ही कश्ती की मतलब एक मुसाफिर है, हम जिस कश्ती में सवार हैं वो भी उसी कश्ती में हैं। तो आप हमें ये बताएं कि हम किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं, और हमने तो जो काटी सो काटी, हमारे बच्चे किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी डिमांड यही है कि या हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, अगर हमें ये एक्सेप्ट नहीं करती गवर्नमेंट तो हमें पुशबैक किया जाए, डिपोर्ट किया जाए हमें। BSc तालिब इल्मों तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल तालिब इल्म बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रांस एग्जामिनेशन बोर्डस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ बोर्ड जिम्मेदार मांग करना आमुत मुख्तलिफ कोर्सन हवाले गि मेरिट किस बुनियाद पर सिलेक्शन करने युत जन तालिब इल्मन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। हमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे चाहिए, हमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे चाहिए। BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था जो इस साल बोपी कंडक्ट कर रही है, हमें लगा था सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं आज से पहले भी नर्सिंग के, वो मेरिट बेस पे कर रही है, लेकिन बोपी आज हमें बता रही है कि प्रेफरेंस बेस पे होंगे। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये प्रेफरेंसेस नहीं मिली थी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी उनकी। हम चाहते हैं कि अब सिलेक्शन मेरिट बेस पे हो, क्योंकि मेरिट बेस पे अगर सिलेक्शन होगी, जो जिनके पास मेरिट अच्छा है उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अगर मेरिट बेस पे नहीं हुई तो जिनका मेरिट अच्छा है वो घर चले जाएंगे, क्योंकि उनको BSc नर्सिंग की सीट्स नहीं मिल रही। हमें पैरामेडिकल भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी ये प्रेफरेंस बेस पे होंगी। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी सिलेक्शन मेरिट बेस पे होनी चाहिए। मेरिट बेस हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें जो जिनका मेरिट हाई है उन्हें BSc नर्सिंग मिलेगी, उसके बाद जो होगा उनको पैरामेडिकल, उसके बाद जो होगा उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसा होता था पहले वैसे इस साल भी होना चाहिए। ये बोपी को इशू करना चाहिए था कि सारी सिलेक्शन प्रेफरेंस बेस पे होंगी। अगर प्रेफरेंस बेस पे हो रही है तो हमारी प्रेफरेंस चेंज करो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज त्रार बडगमिस में चुनाव जलसो सांझ करना आमुत यथ पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। जलसस दौरान ये वर्करन पर जोर दिन आव तुम गसन पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोट इस्तेमाल करें। तब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अत मौके पर वोनमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हूं मौकफ साफ तो वाजह, तो यम वाद लूकन से करना आई तम वाद पूरे करने बाबत रोज जदोजहद जारी। जम्मू कश्मीर की बख्शन पहचान
हिंदुस्तान के वजूद या हिंदुस्तान की वजूद राखला तब सोन मसले छोड़ मीट मसले गचान जमातन वन मे जवाब गई 27 अगस्त डॉक्टर फारूक साहब नितुल सर 3 MP वजीर अजम हिंदुस्तान अलीशान मकान गवर्नमेंट मिडल स्कूल शेहलीपुर अचबलस में आज महकमे तालीम तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव तालिब इल्मो तो वालिदैन शिरकत कर अत मौके पे कईयान बच्चन हुंद दाखिल स्कूलस मज करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत वालिदैन हिंज दिलचस्पी किन गवर्नमेंट स्कूलन मज बच्चन हुंद दाखिल निनस मज इजाफ सपदमुत यह जन महकम बापत अख खुशाइन कत ये जन वन आव बच्चन मयारी तालीम फराहम करने बापत महकम तरफ कईया कदम तुल्ला आमिद लेकिन हमें उससे आगे भी जाना बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि इस अचबल जोन में कोई 600 के करीब बच्चे जो है वो उनने दाखिला लिया है सरकारी स्कूलों में। बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें आ रहा है। तो सर आखिर पर कोई मैसेज टुवर्ड्स पेरेंट्स? मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, हमारे उस्तादों पर भरोसा करना चाहिए और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि क्या कितनी चेंज आई है। जम्मू कश्मीर में ये नौजवान हुंद जोन गिंदनस द्रकनस कुन फिरने बापत कईयान प्रोग्रामन हुंद सांझ करने तत श्रीनगर किस इंडोर स्टेडियमस मज खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम सांझ करने आमुत यथ मज मुख्तलिफ खेलन सत वाबस्त नौजवान खिलाड़ी हिस्से निवान ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथो प्रोग्रामों सत नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकन मौके फराहम सपदन तो खिलाड़ियों पज बढ़ित तो बूलित यथन प्रोग्रामन मज हिस्से नुन युत जन तिहज सलाहियत बरवे कार अन्य जो मैं ये ऑर्गेनाइज कर रही हूँ खेलो कश्मीर, पिछले साल भी हुआ था, ये सेकंड टाइम हो रहा है खेलो कश्मीर 2। तो मैंने सोचा था ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, जब हम अपने खुद का ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का भी रख सकते हैं। तो नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल लेवल तक इंपॉर्टेंट कोचेस मेंटर्स की जरूरत है क्योंकि ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको एक डिफरेंट सा माहौल देखना पड़ता है, मगर खिलाड़ियों का मानना है कि वैसा कुछ अभी नहीं है यहाँ। बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ये नया स्टेडियम बना है, यहाँ पे अभी बच्चे आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे अभी नया रूल निकला है कि गर्ल्स अलग जाएगी, बॉयज अलग जाएगी। बड़े लड़के जो है वो कहीं पे भी जा सकते, अपने घर में बैठ सकते, छोटे बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देंगे। बट जो बड़े हैं जिन्होंने अपने 10 साल इस फील्ड में दिए हैं, उनको भी तो हमें दे देना है आगे प्लेटफॉर्म, बट यहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं देती। वादी कश्मीर में खेलो कश्मीर और खेलो कश्मीर के साथ साथ बच्चों को देखकर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक साइड से इम्यूनिटी बूस्ट करनी है और दूसरे साइड से कोविड को हराना है। मगर साथ ही साथ बात करें बच्चों को लेकर तो बच्चों का मानना है कि जमीनी सतह पर काम बहुत करना है, एक स्टेडियम से काम नहीं बनेगा, खुद ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। सरकार को आगे आने की जरूरत है, एक साइड से इंटरनेशनल लेवल को कॉम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल कोचिंग और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।